shocking. Then I messed up in the main examination. आधा क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, so you are out of the competition. Not like hey guys, welcome back to our channel. This is Shreya Srivastav and today's topic is going to be very important because इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि how to prepare for NIFT. So before starting the video, I would like to inform you all कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी लिंक ऐड करा है, जाओ एंड उसको चेकआउट करो बिकॉज दैट इज़ अ कम्युनिटी दैट विल टेक योर होल एक्सपीरियंस टू अ नेक्स्ट लेवल. वहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारा फ्री रिसोर्स है एंड फ्री रिसोर्सेज इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. एंड ऑल्सो वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि निफ्ट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. सो तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा जानने में कि how is the competition level, how are other students approaching the same question as you are. So for starting the main video, I would like you all to know my background because इससे क्या होगा कि आप लोगों को मेरी चीज़ें बेटर समझ में आएंगी एंड मैं आप लोगों को चीज़ें और बेटर समझा पाऊँगी. So I took a 2-year drop, shocking, but there were instances that happened and that made me realize a lot of things that I might have not realized अगर मैंने फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लिया होता तो. So the first attempt I did, उसमें मेरा रैंक 900 के अराउंड था. But I thought कि ये तो मेरा first attempt है, it was with 12, so I thought कि why not take a year drop. Yes, why not take a year drop and prepare for the top 2 colleges because I wanted FC and FC 900 rank में आपको बैंगलोर या दिल्ली में नहीं मिलेगा. So I took a year drop and then I joined Sangeeta Singh Studio. I went to Delhi for like offline classes. And then I was doing really good in all the mocks that were happening, class tests जितने भी हो रहे थे, जितने भी sample papers solve कर रहे थे. तो my rank in the whole class was always first, second. This was going on like for the whole year, right? So I was pretty confident in myself कि चलो अब तो हो जाएगा, अब तो Delhi, Mumbai, Bangalore मिल जाएगा. But then I messed up in the main examination, and my rank like went up to 4 digit, and it was something that actually broke me because then I realized कि I should have पहले साल ही ले लिया होता है, एक साल का ड्रॉप लिया, and I thought कि second ड्रॉप तो होता ही नहीं है. But then my mentors were there, then my parents were there who actually supported me in the whole thing, and I realized कि if not designing then I don't know what I made up for. Finally decided कि मैं एक second year drop लूँगी. I'll prepare again, I'll start again, and I'll join Sangeeta Singh Studio again. I'll go offline there, and I did. Right, I went there. So mocks में again I was doing good. Again sample papers जो भी solve हो रहे थे, online tests हो रहे थे, I was doing good, and I did good in the main exam as well. My rank was 133. Now let's start with the main video, and now I'll make you understand why I told you the whole backstory ताकि आपको पता चलेगा if I'm putting a point why it is important. Firstly, we'll discuss CAT question because CAT question का weightage 50% है, तो you cannot mess up your CAT question. And as I told you, I messed up in my main examination, so I messed up in my CAT question only. कमिंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, आधा क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, सो यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. नॉट लाइक कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, बट हाँ टॉप 3, 4, 5 कॉलेजेस यू आर नॉट गेटिंग अनलेस एंड अनटिल आपने मतलब बाकी क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे करे हैं. तो यू शुड ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन. बहुत अच्छे से पढ़ो. देयर आर सेवरल वेबसाइट्स जहाँ पे कैट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन मिल रहे हैं तुमको. वहाँ पे गो टू ChatGPT, सेम क्वेश्चन को वहाँ पुट करो एंड से कि इसके वर्ड चेंज कर दो, इसका थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन बनाओ. इट विल मेक, बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाएगा बट हाँ फॉर प्रैक्टिस यू विल गेट इट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कैट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट. अब देखो सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है. अगर तुम किसी साइकोलॉजी से बना रहे हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि जो चेक कर रहा है उसका भी साइकोलॉजी वही है. मे बी ब्लैक फॉर यू इज समथिंग बोल्ड, फॉर देम ब्लैक मे बी डार्कनेस. सो हाउ यू एक्सप्लेन द होल थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो यू कैनॉट जस्ट रिलाई ऑन कि अरे मैं तो करके आया हूँ, करके आई हूँ तो सही होगा. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, राइट. उनको क्या सही लग रहा है, वो कौन से माइंडसेट से चेक करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इसी के लिए आपको यू विल नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थिंग, फॉर विच अगैन आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कि कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो उसके 10 अलग अलग अप्रोचेस मिलेंगे. मे बी तुम अपना अप्रोच मिला के 2-3 और बच्चों का अप्रोच मिला के एक नया अप्रोच बनाओ. सो इट वुड बी गुड फॉर यू. तुम्हारा और ब्रेन स्टॉर्म हो रहा होगा, सो इट इज़ गुड फॉर यू. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो तुमको करने ही हैं बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग फ्रॉम कलर साइकोलॉजी, कलर थियोरी, लाइन साइकोलॉजी, शेप साइकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल्स का पूरा पॉस्चर एंड एवरीथिंग, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 1 point perspective, 2 point perspective, 3 point is not important. For NIFT it is not, but if you are preparing for UCET and NID, I would say कि 3rd point करके जाना, 3 point करके जाना, and 1 is RAT view. So RAT view and 3 point is important for UCET and NID. First focus on 1 point and 2nd point perspective because that will be something you will be needing in your exam as well. This is like some things that you will have to keep in mind CAT का एग्ज़ाम देते हुए, CAT के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि पहले की जो भी आइडियाज़ उन पे आ रहे हैं, do not always go with that.
हमेशा उन आइडिया को सोचो कि अगर मैं इस आइडिया को और कुछ और इम्प्लीमेंट कर दूँ, उसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बना दूँ, उसको हाउ कैन आई मेक इट डिफरेंट। इफ़ यू आस्क दीज क्वेश्चन फ्रॉम यू योर सेल्फ, तो तुम ऑब्वियसली बाकियों से थोड़ा अलग करोगे। तो जस्ट कीप इन माइंड कि वट एवर क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, इज इट समथिंग एवरीवन एल्स विल बी थिंकिंग। वहाँ पे ये बेट मत करना कि क्या पता सब लोग यही सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन तो कॉमन है तो मैं नहीं करूँगा। दिस इज़ नॉट द वे, राइट। यू हैव टू ऑलवेज थिंक हाउ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द the rest of the students sitting in there। and while preparing also you have to feel like कि तुम एक competition में बैठे हो। it's not like कि तुम एक ड्राइंग 4 घंटे में करो, it's not possible, you are not getting that much time there। तुमको 3 घंटे मिलेंगे 3 क्वेश्चन के लिए, तुमको उसमें उतना ही करना है। coming to the GAT portion which is 30%। see ऑफन मैं बच्चों को ये करते हुए देखती हूँ कि कैट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, कैट के टाइम पे दे लेके यार चल जाएगा, नहीं चलेगा। बिकॉज जो भी तुम्हारा कैट का पोर्शन है इट्स जस्ट 50%। आई एम नॉट सेइंग इट्स जस्ट 50%, बट अगर वो 50% है तो अभी तो 50% और बचा हुआ है ना। तो अगर आप 50% अच्छा करके आ रहे हो, 50% नहीं करके आओगे, तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप कैट को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आपको कैट को भी इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज वो भी कुछ मार्क्स होल्ड करता है, वो भी आपके रैंकिंग को डिफर करता है। आई हैव सीन माई सेल्फ कि 0.25 मार्क्स से 300 रैंकिंग में डिफरेंस आया है। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई वाज सरप्राइज माई सेल्फ कि 0.25 में से 300 रैंकिंग का। दिस हैपेंड विथ मी, आई हैव सीन दिस हैपनिंग। सो डू नॉट गो फॉर कि कैट करके जाएंगे, गैट करके नहीं जाएंगे, गैट में ये सब्जेक्ट करके नहीं जाएंगे। यू हैव टू प्रिपेयर इट एज अ होल थिंग। यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग। यू कैन स्किप सम पार्ट्स ऑफ थिंग्स बट यू कैन नॉट स्किप द होल थिंग, राइट। सो ऑल्सो कीप इन माइंड कि इस साल लास्ट ईयर तक क्या था, जिसके 60 तक आए थे देवर अंडर 1200 1300 रैंक। इस बार जिसके 60 के अराउंड आए हैं दे आर अराउंड 3000 रैंक। सो यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली, क्योंकि ऑब्वियसली 60 मार्क्स में सिर्फ कैट नहीं है, सिचुएशन टेस्ट भी है, गैट भी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन कि गैट का पोर्शन कैसे प्रिपेयर करना है। सो गैट में वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश। सो इंग्लिश की 40 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश इज समथिंग यू हैव टू डू इट। यू कैन नॉट स्किप इंग्लिश बिकॉज उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं 100 मार्क्स में से। तो यू कैन सी ना कि मोस्टली वेटेज जो है वो इंग्लिश का है। पैराग्राफ्स होंगे, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, और होगा आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर नॉट वेरी ऊपर के लेवल का। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, मॉडरेट लेवल के टॉपिक से आता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, एक तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 3 साल में क्वेश्चन बहुत डिफर किए हैं। लाइक द अटेम्प्ट्स आई हैव डन, पहले में कुछ और आया था, सेकेंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और ही आया था। सो यू हैव टू लाइक पूरा देखना पड़ेगा ढंग से कि अगर आप एनालाइज कर रहे हो उस चीज़ को तो एकदम ढंग से करोगे। एंड जितने भी बैंक के एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो वंस यू आर डन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज गो फॉर बैंक के क्वेश्चंस। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे बैंक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड यू कैन जस्ट प्रिपेयर इट फ्रॉम देयर। इंग्लिश का एकदम अच्छे से करना बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग, तो डू नॉट स्किप इट, राइट। एंड देन लेट्स कम टू मैथ्स पार्ट। आई नो मैथ्स हम में से बहुत लोगों का इट्स नॉट गुड, simply it's not good. You can do it but it takes time, it takes a lot of efforts. So what you can do is प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लास्ट 3 अटैम्प्ट्स, अगैन लास्ट 3 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से करूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि माई मैथ इज़ नॉट दैट गुड, राइट। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ये सोचा था कि मैं लास्ट 2 साल के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन मैं करके चली जाऊँगी, हो जाएगा। क्योंकि लाइक माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट के क्वेश्चन वर वेरी सिमिलर। इस बार क्या हुआ, मैं जो प्रिपेयर करके गई थी SICI ये सब मैं प्रिपेयर करके गई थी, राइट। प्रॉफिट लॉस ये सब, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस ये सब मैं प्रिपेयर करके गई थी। क्वेश्चन ही नहीं आए इस टाइप में से। क्वेश्चंस आए हैं कि ग्राफ्स रिलेटेड, तो दैट वाज द क्वेश्चन आई वाज़न्ट वेरी फेमिलियर विद, मेरे लिए बहुत न्यू था वो। आई हैड टू स्किप। मैंने 1-2 क्वेश्चन करने का ट्राई किया बट इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम। मेरे पास उतना टाइम था ही नहीं बिकॉज आई हैड टू डू ऑल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो आई हैड टू स्किप क्वेश्चन। सो दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मेरे मार्क्स मैथ्स में थोड़े कटे थे। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। ये बिग ब्रेन मोमेंट मत करना, नहीं काम आएगा। मैंने ये किया था, नहीं काम आया। एंड आई डोंट वांट कि अगर इफ़ आई एम सिटिंग एट दिस पोजीशन जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि स्किप कर दो, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट। आई नो वहाँ पे कितना मुझे बुरा लगा था, बिकॉज मैं जितना प्रिपेयर करके गई थी उतना अच्छे से करके गई थी। मैंने अगर 10 ही टॉपिक करे थे तो मैंने 10 टॉपिक ऐसे ही करे थे कि अगर उसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं वैसा कर लूँगी, बट वैसे क्वेश्चन से नहीं आए। तो डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन कि प्रीवियस में ऐसे क्वेश्चन आए तो इस साल भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नो, इट कैन डिफरेंशिएट, पास में डिफरेंशिएट हुआ है। निफ्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, वो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर यहाँ पूछ लेगा एंड देन आपको यहाँ पूछ लेगा। तो दैट इज़ लाइक समथिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल अबाउट निफ्ट। तो डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन थिंग्स कि ऐसा ही आया तो ऐसा ही चलेगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर तक 50 मार्क्स इंग्लिश में क्वेश्चन आते थे, बस 40 आए हैं। लास्ट ईयर तक 4 से 5 पैराग्राफ्स होते थे, अनसीन पैराग्राफ्स। इस साल से 2 से 3 पैराग्राफ्स थे। सो एंड दे डू नॉट टेल ऑल्सो कि हम ये चेंज करने वाले, दे जस्ट डू इट इन द मेन एग्जामिनेशन। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी वेरी
वेरी मच रेडी अबाउट इट कि अगर ये ऐसा आ रहा है तो ऐसा करना है मुझे, ठीक है। मैथ्स का हो गया। मैथ्स के क्वेश्चन के लिए अगैन आप बैंक के क्वेश्चन कर सकते हो, बट बैंक के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के होते हैं, तो अगर आपको कहीं से स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहा है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू बहुत हाई लेवल वाला। बैंक के क्वेश्चंस में भी वहाँ पे लिखा होता है मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, डू द इजी लेवल वाला। अगर इजी लेवल इजीली हो जा रहा है तो देन गो फॉर मॉडरेट। नाउ लेट्स कम टू रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग इज समथिंग दैट यू कैन डू बहुत आराम से अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो। डू नॉट लूज प्रैक्टिस। अगर आपका प्रैक्टिस कहीं भी छूटा आप छूट जाओगे, हाँ आप छूट जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में देयर इज वन ट्रिक, टॉपिक्स ईजी होंगे। एक तो टॉपिक होगा जो आपको समझ जाएगा, वो हर सब्जेक्ट में होगा, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीजनिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 टाइप होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ लिया कि इसकी मौसी, इसकी चाची, इसका मामा, हो गया। अब उसका सेकेंड टाइप आता है कि लुकिंग एट अ फोटो शी सेड ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ द एनीथिंग, पूरा सेंटेंस, उस टाइप के क्वेश्चन करो। वो क्वेश्चन हो गए। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन जो बहुत इनडायरेक्ट होता है, क्वेश्चन बनाना होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन साइन डिनोट्स सिस्टर, इफ एडिशन का साइन इज डिनोटिंग डॉटर, तो अगर हम द होल इक्वेशन विल बी गिवन कि इसका h इज डिवाइडेड बाई p, देन प्लस a प्लस v माइनस c, देन व्हाट इज a टू b, दैट कैन बी द क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो सारे टाइप के क्वेश्चन करें। ब्लड रिलेशन इज, आई मीन रीजनिंग इज नॉट हार्ड, यू जस्ट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट। रीजनिंग यू कैन नॉट मिस। मेरा इंग्लिश एंड रीजनिंग वर द स्कोरिंग पार्ट। इंग्लिश में आई स्कोर्ड अराउंड 38-39 आउट ऑफ 40, एंड मेरा रीजनिंग में बस एक गलत हुआ था, एंड गलत भी नहीं हुआ था, आई स्किप दैट क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज समथिंग आई वाजंट श्योर अबाउट, तो मुझे चाहिए था कि नेगेटिव मार्किंग ना जाए। एंड रीजनिंग में आप तुक्का नहीं मार सकते हो। फॉर द क्वेश्चंस अगैन यू कैन गो फॉर द बैंक क्वेश्चंस। आप सिंपली प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है जस्ट प्रिपेयर दैट, बिकॉज रीजनिंग में इतने मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। यू कैन डू दैट, एंड फॉर मोर यू कैन जस्ट टेक ऑल दोज क्वेश्चंस, पुट इट इनटू ChatGPT, AI से बोलो कि इसको सिमिलर क्वेश्चंस बना के दे सेम लेवल पे, दे विल डू दैट, सॉल्व दोज। अगर आप दिन में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करो, टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका एक दिन में 20 क्वेश्चन नहीं हो रहा, इट्स ओके, 2 दिन में 20 क्वेश्चन करो, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, यू कैन डू दैट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द जीके पार्ट। जीके पार्ट इज समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, इट्स समथिंग वेरी 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 अनप्रेडिक्टेबल। आई विल टेल यू द फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड, उसमें मुझसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा था, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। सेकंड में कंप्यूटर्स पूछा था, वैसे ये पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई कब मरी थी, महात्मा गांधी इंडिया कब वापस आए थे। लाइक दीज वर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी, राइट। एंड थर्ड अटेम्प्ट में इट वॉज ऑल अबाउट टेक्सटाइल, कि मलमल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बुक किसने लिखी है, टैगलाइन है वो कौन से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, या कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। सो यू सो हाउ इट चेंज्ड कि अगर यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पूछ रहे हैं, ऐसे तो है ही नहीं कोई क्वेश्चन कि सेम इक्वेशन में कोई क्वेश्चन आ रहा है। दे डोंट, आपको मतलब व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, मैंने तो मजाक में वो बोल दिया था कि यार हम ये डिज़ाइनिंग के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ लेते हैं ना, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, भाई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम वहाँ पे बैठ के, और हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक दैट वी लेफ्ट, एंड देन अगैन क्वेश्चन इतना ही वेरी हो गया कि वी वर लाइक कि अगैन कि अरे ये क्या आ गया। दो हमने उस चीज़ का प्रिपेयर किया था, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा कर गई कि अगर हमने 10 चीज़ें पढ़ी उसमें 2 चीज़ें तो आई हैं। सो दैट्स हाउ वो प्रिपेयर फॉर जीके, बिकॉज जीके इज समथिंग नो वन कैन प्रेडिक्ट। आपको कोई भी कोचिंग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, आपको कोई भी मेंटर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, यू जस्ट हैव टू स्टडी अ लॉट इन दैट, ठीक है। एंड देन रीड न्यूज़ आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। जनवरी से दिसंबर तक रीड ऑल द न्यूज़, बिकॉज उसके बाद तो पेपर बन जाता है, तो जनवरी का आता नहीं, बट इस जनवरी से लाइक 25 के जनवरी से 25 के दिसंबर तक पूरा पढ़ो। डू नॉट स्किप मेजर चेंजेस दैट वर हैपेंड, या फिर टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर कुछ चेंज हुआ है तो डू नॉट स्किप दैट। बुक्स के बारे में नॉलेज रखो कि जितने भी फेमस बुक्स हैं उनका राइटर कौन है, किस किस बुक्स का मूवी अडैप्शन हुआ है, बी हेल्पिंग यू अ लॉट, नॉट ओनली इन द प्रिपरेशन बट ऑल्सो आफ्टर दैट इन कॉलेज ऑल्सो इट विल बी हेल्पिंग यू। बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, एंड काफ़ी बार वो चीज़ें आ भी जाती हैं। अगर वो चीज़ आपकी जीके में नहीं आ रही है तो आपकी कैट में आ जाएगी, वो आपकी कैट में नहीं आ रही तो आपकी जीके में आ जाएगी। ऑल्सो ये जो कलर साइकोलॉजी वगैरह मैंने टॉपिक्स बताए थे कैट में, दीज आर द टॉपिक्स जिनका गैट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ सकता है जीके वगैरह में, अगर आपको जनरल नॉलेज सीखी है कि नहीं है। इट कैन कम कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शरी कलर्स क्या होते हैं, नो स्प्लिट कलर्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये डू नॉट स्किप दिस थिंग्स, दीज आर द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगैन नॉट ओनली फॉर द प्रिपरेशन बट ऑल्सो फॉर योर कॉलेज। दिस इज इट, कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल, कनेक्ट टू पीपल, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नेफ्ट। मेंटोर से बात करो, उनसे रिव्यूज़ लो, बिकॉज अंटिल यू आर नॉट आस्किंग फॉर द रिव्यूज़ यू डू नॉट नो कि वेर यू आर गोइंग रॉन्ग, हाउ यू कैन इम्प्रूव, इन वॉट फील्ड्स यू कैन इम्प्रूव। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू डू नॉट स्किप दैट पार्ट, राइट। अगैन कम्युनिटी वाला जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, चेक इट आउट। आपको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री रिसोर्सेज में सब कुछ यही सब होगा जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बोला है, आप यहाँ से ढूंढ लेना, वहाँ से ढूंढ लेना,
फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, यूज़ दैट एज वेल, बिकॉज आपको अगर बैठे बैठे कुछ चीज़ मिल रही है, वाई नॉट यूज़ इट, एंड दैट इज समथिंग कि लोगों ने बैठ के बनाया है, इट्स नॉट समथिंग ChatGPT जनरेटेड, तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट टच लाएगा आपको. कीप योर आइडियाज़ वेरी ओरिजिनल. Pinterest पे मत जाओ, यू कैन गो फॉर द रेफरेंस बट डू नॉट जस्ट गो विद द होल थिंग ओनली, राइट, बिकॉज Pinterest सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, जितने लोग बैठ रहे हैं वो देख रहे हैं. वेल, फॉर एनी क्वायरीज कॉमेंट डाउन. अगर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ हैं, let us know, we will work on that because you are the audience and जो आपको चाहिए होगा we will deliver that only to you. And again, community check करो, and with this I will be ending this video. Thank you for watching and do not forget to subscribe. Thank you.